السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر ہاشمی پروگرام فرمان الہی کے ذریعے آپ سبھی ناظرین کا استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، کل کے ایپیسوڈ میں ہم نے سورہ محمد کی آیت نمبر 34 سے 38 یعنی سورہ ختم تک اور سورۃ الفتح کی ابتدائی 14 آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کا شرف حاصل کیا۔ آج ہم اپنے اس ایپیسوڈ میں سورۃ الفتح کی آیت نمبر 15 سے 27 تک تلاوت اور اس کا ترجمے کو شامل کریں گے۔ کل جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ان کے اخیر میں ہم نے یہ سنا تھا کہ منافق کسے کہا جاتا ہے اور منافقین کی کیا کیا علامتیں ہوتی ہیں۔ آج تلاوت کی جانے والی آیتوں میں انہی منافقین کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ منافق اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے دل میں کچھ ہوتا ہے اور زبان سے کچھ جاری ہو جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کا وجود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ میں بھی تھا، اور یہ لوگوں میں فساد برپا کرتے اور آپس میں لڑاتے اور شور و غل مچانے لگتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عمرہ ادا کرنے کی غرض سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو رہے تھے، تو منافقین نے یہ سمجھا کہ یہ سفر بڑا مشکل اور کٹھن معلوم ہوتا ہے، ہم اس سفر میں شامل نہیں ہو سکتے۔ تو اس طریقے سے وہ رک گئے اور انہوں نے یہ سوچا کہ مکہ مکرمہ میں مخالفین کا اقتدار ہے اور وہاں پر اگر ہم چلے جائیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی نقصان ہم کو پہنچ جائے۔ ناظرین محترم، اسی طریقے سے جب خیبر کا سفر کرنے کا موقع آیا تاکہ وہاں پر جو فتنہ و فساد برپا کرنے والے ہیں ان کو اس سے باز رکھا جائے، جب یہ قافلہ روانہ ہونے والا تھا تو منافقین یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے، کیونکہ خیبر کے مقام پر نقصان کا اندیشہ نہیں ہے، اب وہاں پر جتنے لوگ موجود رہیں گے انہیں راحت و سکون ملتا جائے گا۔ تو ناظرین، انہی منافقین کے بارے میں اور کیا بیان کیا گیا، اس کے متعلق مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ ترجمہ کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا۔ جب تم لوگ غنیمت لینے چلو گے تو جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے وہ کہیں گے کہ ہمیں بھی اجازت دیجیے کہ آپ کے ساتھ چلیں، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے قول کو بدل دیں، کہہ دو کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، اسی طرح اللہ نے پہلے سے فرما دیا ہے۔ پھر کہیں گے نہیں، تم تو ہم سے حسد کرتے ہو، بات یہ ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہی نہیں مگر بہت کم۔ قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی بأس شدید تقاتلونهم او يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ
من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما। जो गंवार पीछे रह गए थे उनसे कह दो कि तुम जल्द एक सख्त जंगजू कौम के साथ लड़ाई के लिए बुलाए जाओगे। उनसे तुम या तो जंग करते रहोगे या वो इस्लाम ले आएंगे। अगर तुम हुक्म मानोगे तो खुदा तुमको अच्छा बदला देगा, और अगर मुंह फेर लोगे जैसे पहली दफा फेरा था तो वो तुमको बुरी तकलीफ की सजा देगा। ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما। न तो अंधे पर गुनाह है कि सफर जंग से पीछे रह जाए, और न लंगड़े पर गुनाह है और न बीमार पर गुनाह है। और जो शख्स अल्लाह और उसके पैगंबर के फरमान पर चलेगा, अल्लाह उसको बहिश्तों में दाखिल करेगा जिनके तले नहरें बह रही हैं, और जो रूगर्दानी करेगा उसे बुरे दुख की सजा देगा। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबाइऊनक तहतश-शजरति फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا। ऐ पैगंबर, जब मोमिन तुमसे दरख्त के नीचे बैत कर रहे थे तो अल्लाह उनसे खुश हुआ, और जो सिद्क़ व खुलूस उनके दिलों में था वो उसने मालूम कर लिया तो उन पर तसल्ली नाजिल फरमाई और उन्हें जल्द फतह इनायत की। वमग़ानिम कसीरतन यअख़ुज़ूनहा वकान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा। और बहुत सी गनीमतें जो उन्होंने हासिल की, और खुदा गालिब हिकमत वाला है। नाज़रीन, प्रोग्राम फरमाने इलाही में सूरतुल फतह की तिलावत और उसके तर्जमे का तसलसल जारी रहेगा। हम आपसे मुलाकात करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। वक्फे के बाद आप सभी का खैर मक़दम है। अज़ीज़ानी गिरामी, सूरतुल फतह की आयत नंबर 18 उस वक्त नाजिल हुई जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा अदा करने की गर्ज से अपने साथ 1400 सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को लेकर मक्के मुकर्रमा की तरफ रवाना हुए। जब हुदैबिया नामी मकाम पर पहुंचे तो वहां पर सुलह कराने से पहले हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को अपना सफ़ीर बनाकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के वालों की तरफ रवाना फरमाया। जब ये बात फैल चुकी है कि हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद कर दिया गया, और उस वक्त ये आम दस्तूर था कि जो कोई सफ़ीर होता तो न तो उसे कोई नुकसान पहुंचाया जाता न कत्ल किया जाता।
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन से बैअत लेते हैं और ये इरशाद फरमाते हैं कि हमें हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु का क़िसास लेना चाहिए। जब ये तमाम सहाबा बैअत लिए तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस बैअत की तारीफ बयान करते हुए ये इरशाद फरमाया कि इनकी बैअत करना हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ पर दर हकीकत वो अल्लाह से बैअत करने के बराबर है। तो नाज़रीन, इसके मुतालिक और मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं तिलावत और उसका तर्जमा। वअदकुमुल्लाहु मगानिम कसीरतन तअखुज़ूनहा फअज्जल लकुम हादिही वकफ्फ अयदियन नास अन्कुम वलितकून आयतन लिलमुमिनीन वयहदियकुम सिरातन मुस्तकीमा। अल्लाह ने तुमसे बहुत सी गनीमतों का वादा फरमाया है कि तुम उनको हासिल करोगे, सो उसने गनीमत की तुम्हारे लिए जल्दी फरमाई और लोगों के हाथ तुमसे रोक दिए। गरज ये थी कि ये मोमिनों के लिए अल्लाह की कुदरत का नमूना है और वो तुमको सीधे रास्ते पर चलाए। वकान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीरा। और गनीमतें दी जिन पर तुम कुदरत नहीं रखते थे और वो अल्लाह ही की कुदरत में थी और खुदा हर चीज पर कादिर है। वलौ क़ातलकुमुल्लज़ीन कफ़रू लवल्लहुल अदबार सुम्म ला यजिदून वलिय्यन वला नसीरा। और अगर तुमसे काफिर लड़ते तो पीठ फेर कर भाग जाते, फिर किसी को दोस्त न पाते और न मददगार। सुन्नतल्लाहि लती क़द ख़लत मिन क़ब्लु वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। यही अल्लाह की आदत है जो पहले से चली आती है और तुम अल्लाह की आदत कभी बदलती न देखोगे। वहुवल्लज़ी कफ्फ अयदियहुम अन्कुम वअयदियकुम अन्हुम बिबत्नि मक्कत मिन बअदि अन अज़फ़रकुम अलैहिम वकान अल्लाहु बिमा तअमलून बसीरा। और वही तो है जिसने तुमको इन काफिरों पर फतहयाब करने के बाद सरहद मक्का में उनके हाथ तुमसे और तुम्हारे हाथ उनसे रोक लिए, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसको देख रहा है। हुमुल्लज़ीन कफ़रू वसद्दूकुम अनिल मस्जिदिल हरामि वल हदिय मअकूफन अन यबलुग महिल्लहु वलौला रिजालुम मुमिनून वनिसाउम मुमिनातुन लम तअलमूहुम अन ततऊहुम फतुसीबकुम मिनहुम मअर्रतुम बिगैरि इल्म लियुदखिल अल्लाहु फी रहमतिही मन यशा लौ तज़य्यलू लअज़्ज़बना الذين كفروا منهم وعذابا
أليما. ये वही लोग हैं जिन्होंने कुफ्र किया और तुमको मस्जिद हराम से रोक दिया और कुर्बानियों को भी कि अपनी जगह पहुंचने से रुकी नहीं। और अगर ऐसे मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें न होती जिनको तुम जानते न थे कि अगर तुम उनको पामाल कर देते तो तुमको उनकी तरफ से बेखबरी में नुकसान पहुंच जाता, तो भी तुम्हारे हाथ से फतह हो जाती, मगर ताखीर इसलिए हुई कि अल्लाह अपनी रहमत में जिसको चाहे दाखिल करे। और अगर दोनों फरीक अलग अलग हो जाते तो जो उनमें काफिर थे उनको हम दुख देने वाला अजाब देते। إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. जब काफिरों ने अपने दिलों में जिद की और जिद भी जाहिलियत की तो अल्लाह ने अपने पैगंबर और मोमिनों पर अपनी तरफ से तस्कीन नाजिल फरमाई और उनको परहेजगारी की बात पर कायम रखा और वो उसी के मुस्तहिक और अहल थे और अल्लाह हर चीज से बाखबर है। नाजरीन, प्रोग्राम फरमाने इलाही में सूरतुल फतह की तिलावत और उसके तर्जमे का तसलसल जारी रहेगा। हम आपसे मुलाकात करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। वक्फे के बाद दोबारा आप सभी का खैर मक़दम है। नाज़रीन मुहतरम, जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले मक्का की तरफ रोक दिए जाने पर उम्रा किए बगैर वापस हो रहे थे तो आपने ख्वाब में यह मुलाहिजा फरमाया कि मक्का मुकर्रमा में आप अमन व आफियत के साथ दाखिल हो रहे हैं। तो अब मुनाफिकीन ये शक में पड़ गए कि ये क्या बात है कि सुलह कराने के बाद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा किए बगैर यहाँ से वापस हो जा रहे हैं। तब अल्लाह सुब्हानहु व तआला हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस ख्वाब की तस्दीक फरमाने के लिए सूरतुल फतह की आयत नंबर 27 नाजिल फरमाई और उसमें यही इरशाद फरमाया गया कि आइंदा साल हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन बड़े अमन व अमान के साथ, आफियत के साथ और बड़े खुशगवार अंदाज में मक्के मुकर्रमा में दाखिल हो जाएंगे और उम्रा अदा करने लगेंगे। तो नाजरीन, इसके मुतालिक और मालूमात हासिल करने के लिए शामिल हो जाते हैं सूरतुल फतह की आज की बाकी आयतों की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ। लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहु या बिलहक़्क़ लतदख़ुलुन्ना अल-मस्जिदल हराम इंशाअल्लाहु आमिनीना मुहल्लिक़ीना रुऊसकुम इंशाअल्लाहु
آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا صدق الله العظيم। बेशक अल्लाह ने अपने पैगंबर को सच्चा और सही ख्वाब दिखाया कि तुम, अल्लाह ने चाहा, तुम मस्जिद हराम में अपने सर मुंडवा कर, अपने बाल कतरवा कर अमन व अमान से दाखिल होगे और किसी तरह का खौफ न करोगे। जो बात तुम नहीं जानते थे उसको मालूम थी, सो उसने उससे पहले ही जल्द फतह करा दी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि वो हम सबको अमन व आफियत वाली जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। तो नाजरीन, ये था हमारा प्रोग्राम फरमान इलाही। इंशाअल्लाह कल हम दोबारा इसी वक्त तिलावत और तर्जमे के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।